آغاز اہم خبر سے۔ چودھری پرویز الہی کے خلاف پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس۔ عدالت نے اینٹی کرپشن کی جانب سے جسمانی ریمانڈ کی استدعا پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ چودھری پرویز الہی کے خلاف پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس۔ عدالت نے اینٹی کرپشن کی جانب سے جسمانی ریمانڈ کی استدعا پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ تفصیلات جانیں گے، نمائندہ PNN رانا وحید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی رانا وحید، کب تک سنایا جائے گا یہ محفوظ فیصلہ؟ جی، آج چودھری پرویز الہی کو جو ہے اینٹی کرپشن کی جانب سے چوتھے مقدمے میں جو پنجاب اسمبلی میں بھرتیوں کا جو کیس ہے، اس کے کیس میں جو ہے آج عدالت میں جو ہے وہ پیش کیا گیا، اور جو اینٹی کرپشن کے وکلا کی جانب سے جو ہے وہ عدالت سے جو استدعا کی گئی جسمانی ریمانڈ کی، تو جس پر جو ہے وکلا نے جو پرویز الہی کے وکلا ہیں اور جو اینٹی کرپشن کے وکلا کے دلائل دونوں طرف سے دلائل سامنے آئے، اور اس کے بعد دلائل سننے کے بعد جو ہے عدالت ہے وہ محفوظ کر لیا ہے، اور یہ جو ہے وہ کمرہ عدالت میں ہی موجود تھے۔ پھر اس کے بعد اینٹی کرپشن کی ٹیم ہو گئی۔ آپ پرویز الہی کو اینٹی کرپشن ہیڈ کوارٹر میں منتقل کیا ہے، اور ابھی کا فیصلہ جو ہے محفوظ ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ دیر بعد جو ہے معزز عدالت جو ہے یہ فیصلہ سنائے گی کہ آیا ان کا ریمانڈ ہوگا یا ان کا جو پرچہ پہلے 3 پرچے جو ہیں پہلے اینٹی کرپشن کے وہ ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ ایک لاہور کی عدالت سے ڈسچارج ہوا تھا، 2 گجرانوالہ کی عدالت سے ڈسچارج ہو گئے تھے۔ اب چوتھے مقدمے میں آج ان کو جو ہے عدالت کے روبرو پیش کیا گیا، جہاں پہ ان کے وکلا نے ٹھیک ہے، بہت شکریہ رانا وحید، آپ تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ دوسری جانب PTI کے صدر پرویز الہی کہتے ہیں کہ جتنے مرضی کیس بنا لیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری لیگل ٹیم مضبوط ہے، سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہوں۔ عدالت کے باہر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سب کو معلوم ہے کہ مقدمات کے پیچھے کون ہے، ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری فوج کو نقصان پہنچے، جہاں ہم غلط ہوں گے ہماری بھی اصلاح ہوگی۔ جتنے مرضی کیسز بنا لیں، 1000 کیس بنا لیں، 700-800 کیس بنا لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میرا میسج ہے تمام PTI کے ورکرز کو کہ آپ کھڑے ہو جائیں اس ظلم کے خلاف۔ یہ جو بار بار لوگوں کے گھروں کے جا کے توڑ رہے ہیں اور جا کے خواتین کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ہم نے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کے طور پر کھڑا ہو کے اور ان کا سب کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں، ہم فوج کے حق میں ہیں، اور ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے جس سے فوج ہماری ڈیمیج ہو۔ ہمارے ملک کی فوج ہے، کسی باہر کے فوج نہیں ہے۔ جہاں ہم غلط ہوئے اس کی ہم اصلاح کریں گے، اور مل کے اس ملک کی بہتری کا کر لیں، اور اس میں فوج ایک بہت بڑا ادارہ ہے ماشاءاللہ، اور وہ ہمارا ادارہ ہے، ہمارا اپنا ادارہ ہے۔ 9 مئی کے حملوں میں مخصوص ٹارگٹ منتخب کیے گئے، تمام حملے پلاننگ کے تحت کیے گئے، جناح ہاؤس GHQ سمیت حملے ایک ہی وقت میں کیے گئے۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کہتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پھیلائی گئی۔ 8 مئی کو ہنگامے میں ہونے والی 215 کالز جناح ہاؤس کی کالز میں بھی موجود ہیں، ان میں حماد اظہر، محمود الرشید، اسلم اقبال اور مراد راز کی کالز بھی شامل ہیں۔ کہ جو ٹائم کا وہ تمام کام پلاننگ کے ساتھ تھا، جو ہم آپ کو اگر ٹیلی فون کالز کے ساتھ یہ بھی دکھائیں گے۔ یہ تمام جناح ہاؤس، PF بیس میاں والی، حمزہ کیمپ راولپنڈی، ریڈیو پاکستان پشاور، بنو کینٹ، GHQ راولپنڈی، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پہ جو حملے ہوتے ہیں وہ کس طرح ایک ٹائم پہ شروع کیے جاتے ہیں۔ اور تمام انسپیکٹر جنرل صاحبان سے ہماری بات چیت ہوئی ہے، انٹیریئر میں اس کے بارے میں کانفرنس ہوئی ہے، جس سے پتہ چلا ہے کہ ایک خاص ٹائم کے اوپر بڑے طریقے کے ساتھ یہ پلان کیے گئے۔ یہ تمام سوشل میڈیا سے جو ایک ماحول بنایا گیا پچھلے کچھ مہینوں میں، 215 کالز ہیں جو جناح ہاؤس اور 8 مارچ کے لوگوں کے ساتھ کامن ہے۔ یاسمین راشد 41 کالز، اور یہ کالز GSM کی کالز ہیں، واٹس ایپ کی کالز، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جو باقی ڈیٹا ہے وہ ہم عدالت میں سامنے رکھیں گے۔ حماد اظہر صاحب کی کالز، محمود رشید صاحب کی کالز، اجاز چودھری صاحب کی کالز، اسلم اقبال کی کال، اور مراد راز کی کال۔
सानह 9 मई के मंसूबा साजों और उसमें हिस्सा लेने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां जारी हैं। जिना हाउस लाहौर में तोड़फोड़ में शामिल एक और मुजरिम पकड़ा गया। शरपसंद रईस अहमद ने शरपसंदाना कार्रवाइयों में मुलव्वस होने का एतराफ कर लिया। दूसरी जानिब शोहदाए पाक फौज के वालिदैन और अंजुमन ताजरान लाहौर ने जिना हाउस का दौरा किया। जलाओ घिराव की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। पाकिस्तान की तारीख का स्याह बाब 9 मई 2023 इस दिन की शरपसंदाना कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी और इसमें हिस्सा लेने वालों के खिलाफ कानून का घेरा तंग हो गया। जिना हाउस लाहौर में तोड़फोड़ में शामिल एक और मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका ताल्लुक सवात के जिला शांगला से है। शरपसंद रईस अहमद ने अपने एतराफी बयान में कहा है कि 9 मई को जमान पार्क में मंसूबा बनाया गया, जिसके मुताबिक यास्मीन राशिद की क़यादत में कोर कमांडर हाउस लाहौर पहुंचा। डॉक्टर यास्मीन राशिद की क़यादत में कोर कमांडर हाउस लाहौर पहुंचा हूँ। वहाँ पर हमने तोड़फोड़ की है, गमले तोड़े हैं और पीटीआई वर्कर के साथ मिलकर हमने आग जलाई है। शोहदाए पाक फौज के वालिदैन ने जिना हाउस लाहौर और दीगर फौजी तंसीबात के जलाओ घेराव पर इजहार अफसोस और इजहार मजम्मत किया है। कहते हैं सब देख कर दिल खून के आंसू रो रहा है। जिस वक्त इस पे हमलों का तो वाकई दिल खून के आंसू रो रहा था कि इन्होंने कितनी जुर्रत की हमारी इस खूबसूरत यादगार को जलाने की। आज ये जो हालत देखी है, जिसके लिए हमारे बच्चों ने जान दी है, तो ये जो हमारे बंदे इन्होंने ये किया है, तो मुझे आज उससे भी और ज्यादा दुख हुआ है। अंजुमन ताजरान लाहौर ने शोहदाए वतन और अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए जिना हाउस का दौरा किया और वहाँ होने वाले इश्तियाल अंगेज वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए मुलव्वस अफराद को कड़ी सजा देने का मुतालबा किया। मैं मुतालबा करता हूँ ये जो भी बदबख्त थे इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। इधर आके तो अल्लाह का वास्ता है कि हमने जो देखा है वो बयान नहीं किया जा सकता। पूरी कौम सानह 9 मई पर अफसुर्दा है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में मुलव्वस अफराद किसी भी तरह की रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। 9 मई के वाकयात के बलोचिस्तान पर मनफी असरात मुरतब हुए। बलोचिस्तान में तब्दीली का ख्वाब खत्म हो गया। बलोच रहनुमा नवाबजादा मीर जमाल खान रईसानी कहते हैं कि पाकिस्तान मुश्किल हालात से दो चार है। दुश्मन हमारे घर में बैठा है। अगर हम अपने इदारों की कदर करेंगे तो दुश्मन हमारा बाल भी बीका नहीं कर सकता। 9 मई के जो वाकयात हुए हैं, यकीनन उन वाकयात को देखकर हर पाकिस्तानी का दिल खून के आंसू रोता है। पाकिस्तानी फौज के हज़ारों कुर्बानियां हैं, लेकिन अगर सियासत की आड़ में आके अगर आप अपने अफवाज पाकिस्तान को उसके ऊपर अटैक करते हैं और मुल्क की सलामती को उसके ऊपर आप अटैक करते हैं, मुल्क शहीदों की यादगारों हैं उनके ऊपर अगर आप अटैक करते हैं, ये मैं समझता हूँ कि काबिल मजम्मत भी है और ये हम नहीं होने देंगे। बलोच नौजवान को वरगलाया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है। अपने पाक अफवाज के साथ खड़े हैं, अपने बलोचिस्तान जो हमारा धरती है उसके साथ हम खड़े हैं। फैसलाबाद में हसास इदारे के दफ्तर पर हमले के केस में अदालत ने मज़ीद 4 मुल्ज़िमान के खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाने और कार्रवाई करने की इजाज़त दे दी है। चारों मुल्ज़िमान को हसास इदारे की टीम ने सेंट्रल जेल से तहवील में लिया। हसास इदारे की तरफ से तहवील में लिए जाने वाले मुल्ज़िमान की तादाद अब 8 हो गई है। फैसलाबाद में हसास इदारे के दफ्तर पर हमले के केस में अदालत ने मज़ीद 4 मुल्ज़िमान के खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाने और कार्रवाई करने की इजाज़त दे दी। जहांगीर तरीन की सियासी सरगर्मियों और जोड़ तोड़ में तेजी। नई पार्टी रजिस्टर कराने या तरीन ग्रुप नाम पर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत, ग्रुप मेंबरान से सिफारिशात तलब कर दी गई। अगले हफ्ते अहम इजलास बुला लिया गया। मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन में पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए बाकायदा दरख्वास्त दी जाएगी। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले अरकान ने हम ख्याल ग्रुप बना लिया। ग्रुप को डेमोक्रेट्स का नाम दिया गया है। साबिक सूबाई वजीर कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर और मुराद रास ग्रुप के लीडर हैं। डेमोक्रेट्स ग्रुप का जल्द मंजर आम पर आने का फैसला। पीटीआई छोड़ने वाले अरकान से राबते तेज। उधर तहरीक इंसाफ की साबिक रुकन सूबाई असम्बली आयशा इकबाल ने पीटीआई के नारा कशी इख्तियार कर ली। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी सियासत पसंद नहीं जिसमें हमारे अपने लोग आपस में लड़ें। अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे और ये मुल्क तरक्की करे।
9 मई के वाकयात के बाद तहरीक इंसाफ के यके बाद दीगरे रहनुमा और साबिक वज़रा पार्टी को खैर बात कह गए। अब तक कौन कौन से बड़े नाम पार्टी को गुड बाय कह चुके हैं और किस सूबे से कितने रहनुमा राहें जुदा कर चुके हैं, देखिए मजहर इकबाल की ये रिपोर्ट। 9 मई के एक दिन ने पीटीआई की बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया। पुराने और वफादार साथी एक एक करके पार्टी से रास्ते जुदा कर रहे हैं। 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात के बाद 13 मई से 3 जून तक तहरीक इंसाफ के 220 रहनुमा पार्टी छोड़ चुके हैं। जराये के मुताबिक अब तक 31 वजीर, मशीर व मुआवने खसूसी, 48 अरकान कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ को खैर बात कह चुके हैं। पंजाब से 77 अरकान, केपी से 11, सिंध से 8 और बलोचिस्तान से 3 अरकान पार्टी को बाय बाय कह गए। जराये के मुताबिक कश्मीर से साबिक वजीर आजम समेत 32 अरकान में से 8 बाकी रह गए हैं। पीटीआई के 52 पार्टी ओहदेदारों ने पार्टी से राहें अलग कर ली हैं, जिनमें 3 सेनेटर्स भी शामिल हैं। इसी तरह पार्टी में मौजूद बड़े नाम साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा व साबिक वजीर दिफा परवेज खटक और जनरल सेक्रेटरी पीटीआई असद उमर पार्टी ओहदे छोड़ चुके हैं। अब तक पार्टी छोड़ने वालों में सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी, खुसरो बख्तियार, आमिर कियानी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, उस्मान बुजदार, शीरी मजारी, मुराद राज, हाशिम डोगर समेत बड़े नाम शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान की तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत के मौके पर उन्हें तीसरी बार सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। तुर्क सदर और उनकी अहलिया को पाकिस्तानी आमों का तोहफा भी दिया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक के कायदीन से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने ईरान के अव्वल नायब सदर मोहम्मद मुखबिर से मुलाकात में कहा, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बार्टर ट्रेड खुशाइंद पेशरफ्त है। सरहदी मार्केट से दोनों ममालिक के अवाम को फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्किया में मौजूद हैं। उन्होंने 9 मुंतखब सदर तैयब उर्दवान की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत की और इन्हें कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। शहबाज शरीफ ने नेक तमन्नाओं का पैगाम देते हुए अपने दस्तखत भी किए। तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान और उनकी अहलिया को पाकिस्तानी आमों का तोहफा भी पेश किया। इस मौका पर वज़ीर आज़म ने सदर उर्दवान से कहा कि पाकिस्तानी अवाम आपके इंतखाब पर बहुत खुश है। आपके लिए आमों का तोहफा लाया हूँ। आधे आम अपने भाई और आधे बहन के लिए हैं। शहबाज शरीफ की बात सुनकर उर्दवान और उनकी अहलिया मुस्कुरा दिए और शुक्रिया अदा किया। तकरीब में वज़ीर आज़म से मुख्तलिफ ममालिक के कायदीन की मुलाकात भी हुई, जिनमें तुर्किया के साबिक नायब वज़ीर आज़म और MHP पार्टी के चेयरमैन दियुलत महचली, जमहूरिया कोसोवो की सदर, उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्जा योफ भी शामिल हैं। मुलाकातों में 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग और मुख्तलिफ शोबों में ताउन की ख्वाहिश का इजहार किया गया। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका में कायम रोजवेल्ट होटल 3 साल के लिए लीज पर दे दिया है। पाकिस्तान को $220 मिलियन मिलेंगे। रोजवेल्ट होटल पाकिस्तान का कीमती असासा है। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स किया जा रहा है। ताहम किसी की नौकरी खतरे में नहीं पड़ेगी। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पिछली कैबिनेट ने, जो पिछली गवर्नमेंट की थी, उन्होंने ये फैसला किया था कि इस होटल को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तौर पे आगे ले जाया जाए, लेकिन वो उस पर अमल नहीं कर सके। फैसला दुरुस्त था वो। अब जब हम आए हैं तो हमने इस सारे मामले का जायजा लिया है। हमें एक रास्ता मिल गया और हुकूमत पाकिस्तान का न्यूयॉर्क की जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान को 3 साल के लिए वो होटल हमने उसका 1025 कमरा यानी 100% वो लीज पे दे दिया है। 1025 कमरे लग गए हैं और हमें 3 साल का मुआहदा है, जिसमें से 1.5 साल का गारंटेड बिजनेस है, लेकिन हमारा अंदाजा 3 साल इंशाल्लाह ये चलेगा। $220 मिलियन पाकिस्तान में आएगा, जिसकी जो आमदनी का आगाज हो गया है। और हमने 18 दिन में 600 कमरे हैंड ओवर भी कर दिए हैं और अगले 30 दिन में पूरे कमरे 100% हम न्यूयॉर्क की सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को दे देंगे। यहाँ वो इमिग्रेंट्स को रखेंगे और जिस हालत में होटल है उसी हालत में इंशाल्लाह वापस मिलेगा। दूसरी जानिब कराची में मर्दमशुमारी के मामले पर MQM बरहम मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि हम खून देने वालों की औलादें हैं, लेकिन आज हमें ठीक गिनवाने का मसला है। कराची की आबादी 1 करोड़ और 35 लाख दिखाई गई। फारूक सत्तार बोले, कराची की आबादी सिंध की कुल आबादी का 50% से जायद है, लेकिन एक साजिश के तहत कराची की आबादी 33% से बढ़ने नहीं दी जा रही। नंबर आए हुए इन नंबर्स को हम नहीं मानते।
पाकिस्तान में जो अफरा तफरी चल रही, जब इससे फारिग होंगे तो पता चलेगा कि भाई आबादी जो है वो इतनी रह गई। भाई हम इस तमाम पॉलिटिकल अफरा तफरी के बावजूद हम इससे सरफ नजर नहीं कर सकते। ये हमारे लिए जिंदगी और मौत का, मेरी नस्लों की जिंदगी और मौत का मसला है। कराची की आबादी पूरे सिंध के मुकाबले में 50% से भी ज्यादा है, जबकि इसे हर हाल में एक साजिश और एक पॉलिसी के तहत 33% से बढ़ने नहीं दिया जा रहा। 2017 में भी 33, 98 में भी 30, 31, 32 और उससे पहले भी उससे नीचे। पीपल्स पार्टी मेयर और डिप्टी मेयर कराची के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान रवां हफ्ते करेगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुस्लिम लीग नून को डिप्टी मेयर का ओहदा न दिए जाने का इम्कान है, जबकि पीपल्स पार्टी के सलमान अब्दुल्ला मुराद डिप्टी मेयर कराची के लिए मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। पीपल्स पार्टी मेयर और डिप्टी मेयर कराची के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान रवां हफ्ते करेगी। तफसीलात जानेंगे, नुमाइंदा PNN मोहम्मद सलमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद सलमान। जी बिल्कुल, कराची में जो है वो मेयर, डिप्टी मेयर और जिला चेयरमैन, वाइस चेयरमैन का इंतखाब का मलहरा जो है वो अब आने वाले 15 जून तक मुकम्मल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी की जानिब से मेयर, डिप्टी मेयर के उम्मीदवारों का नाम जो है वो ताल फाइनल नहीं किया गया। जराये का कहना है कि रवां हफ्ते जो है वो इन नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी से मुस्लिम लीग नून ने डिप्टी मेयर का ओहदा का मुतालबा किया था, ताहम जो है वो पीपल्स पार्टी नून लीग का ये मुतालबा नहीं मानेगी, ये जराये का कहना है। जबकि सलमान अब्दुल्ला मुराद जो है उनका डिप्टी मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी में मजबूत नाम चल रहा है, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो बैरून मुल्क हैं और कुछ मसरूफियात हैं उनकी, जिसके बायस जो है मेयर, डिप्टी मेयर के उम्मीदवारों का नाम जो है उसके ऐलानात में ताख़ीर हो रही है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलमान, आप आगाह कर रहे थे।